सलामी आमदो। जैसे थे एक साथ बैठ जाओ। एक साथ सलामी आंदो। जैसे थे एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेंगे। शुरू अतिथिगण, शिक्षकगण एवं अभिभावकगण से मेरा निवेदन है कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं और छात्रों के लिए एक साथ बैठ जाओ। जिसका गौरव गान है
तीन लोक से न्यारा अपना प्यारा हिंदुस्तान है। गंगा यमुना सरस्वती से सिंचित जो गत-क्लेश है। सुजलाम सुफलाम शस्य श्यामला जिसकी धरा विशेष है, वह अपना भारत देश है। A very warm morning to our respected chief guest of today's function, ex-principal of Narmada College of Science and Commerce and ex-pro vice chancellor of Veer Narmad South Gujarat. HSS coordinator Mrs. Nivedita Chattopadhyay, logistic manager Mrs. Saroj Rana, invitees, parents, ex-MHS and all my dear friends. Today, I, Kunjan Chaudhary, and I, Rohan Khanwani, welcome you to the 74th Republic Day celebration. Creates a transformation in the minds of people. So today, we are blessed with such an eminent personality, Dr. B.M. Rawal, whose presence has made this moment a precious one. So, to introduce our honorable chief guest, Dr. B.M. Rawal, to the August gathering, I request Prisha Rana, student of class 11 CBSE. Please, Prisha. Thank you, Rohan. A warm good morning to the respected dignitaries, teachers, and the future of Republic of India. I wish you all a glorious 74th Republic Day. This day comes with a responsibility for us to preserve and respect our cultures by being rooted in our country, but with our eyes open to everything that's going around the world. The sight of getting to know the things going around the world is visible to us only due to our teachers and academicians. Today, it's our school's pleasure to have one such personality amongst us, Dr. B.M. Rawal, the chief guest of this government officer. He completed his MSc from Bhopal and did PhD in chemistry. His thesis was assessed by a Nobel laureate. For 3 years, he also worked at the Bharati Vidyapeeth in Pune. Dr. Rawal always aspired to be a scientist, but due to some adversity, he wasn't able to. But being a chemistry man, when he didn't have a solution, he made one for himself and became an academician. He played a significant role for his students as a chemistry professor from 1986 to 2002. With more doors opening for him, he served as the principal of Narmada College of Science and Commerce from 2002 to 2022. In between, Dr. Rawal was also invited to honor simply mean the realization that there is no particular virtue in doing the things the way they always have been done. And Dr. Rawal was no exception to it. He was a member of Gujarat for the National Education Policy implementation, and thus he was passionately involved with the choice-based credit system. This system provides the students a chance to study the subjects of their own interest along with the mandatory ones. His unmatched dedication towards the betterment of the Indian education system fills our heart with respect and gratitude. Now, I humbly request our Managing Trustee Ranchor Shah Sir to welcome our Chief Guest Dr. B.M. Rawal with a token of love. Please, sir. कली इसकी गरिमा का गान है। मातृभूमि के प्रति इसी भावना को दर्शाने के लिए एक देशभक्ति गीत लेकर आ रहे हैं कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थी। हिंदुस्तान, 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 मेरा मान, मेरी शान, मेरी जान, हिंदुस्तान। वेदों की महिमा से गौरवान्वित है भारतवर्ष, विभिन्न धर्मों से संगठित है भारतवर्ष। देवों का वास भारत का इतिहास है, मात्र देश नहीं भारत एक एहसास है। हिंदुस्तान की कहानी सुनो, मिट्टी की जुबानी सुनो।
हिंदुस्तान की कहानी सुनो, मिट्टी की जुबानी सुनो। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दुनिया को ये ज्ञान मिला, नालंदा से तक्षशिला मिला आयुर्वेद, खोले कई भेद। इस युग की निशानी सुनो, हिंदुस्तान की कहानी सुनो, मिट्टी की जुबानी सुनो। से बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। शून्य में संभावना आशा बड़ी हृदय, विश्वविद्यालय संचला विश्व को पहला मिला। शस्त्र सुश्रुत प्रधान में दुनिया में वरदान है, सबको हमने ही सिखाया वंदे आत्मनिर्भर हम बोलो वंदे मातरम। हमसे बेहतर हम बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम, बोलो वंदे मातरम। था गुलामी का अंधेरा, दिया सूर्य ने हमको प्रकाश। सेना थी जय हिंद की, आजादी का था विश्वास। चाणक्य के तीर, भारत के जवान भी, वीरों की कोई बानी सुनो, हिंदुस्तान की कहानी सुनो, मिट्टी की जुबानी सुनो। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों पे जान तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम, पेट अपने सरों पे चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन, ऐ वतन। महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी और अशोक महान, मर्दानी झांसी की रानी सुनो, हिंदुस्तान की कहानी सुनो, मिट्टी की जुबानी सुनो। कंधों से मिलते हैं, कंधे कंधों से मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल मिलते हैं। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल मिलते हैं। अब जो भी हो चोला बनके पलता है पिंगला, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है जाना। कंधों से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे दो दिल दुश्मन के मिलते हैं। आरंभ है, अंत नहीं है ये, एक नया प्रारंभ है। देखो आसमां में खिलकर सूरज निकल रहा है, देश का परचम अब ऊंचा उड़ रहा है। बरसों का अंधेरा रोशन हो रहा है, गरीब की रसोई से धुआं हट रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। की सड़क से अब शहर जुड़ रहा है। बैंक अब सभी का खाता खोल रहा है, रेल का सफर अब सबको भा रहा है। हुनर के हौसले से रोजगार बढ़ रहा है। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। वाह, Seat on the stage. Please sir, please ma'am.
प्रशिक्षक। So, to felicitate the dedicated educators of our institution for their long-standing service of 15 years, I request CBSE Principal Ma'am. Of today's function, Mr. B.M. Rawal, respected Shah Sir, Ramesh Ma'am, Sangeeta Ma'am, Prakash Sir, all the sectional head, invitees, ex-MATN and my dear children. First of all, wish you all a very happy Republic Day. Today, we feel honored because today is the day on this auspicious occasion. We are going to felicitate our educators, our helpers, who has completed their 15 years. सभी को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई देती हूँ और आज के उपस्थित मेहमान B.M. रावल सर का हम सभी की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ. वेलकम यू सर टू दिस फंक्शन. गणतंत्र दिवस एक नेशनल फेस्टिवल है, हम मनाते हैं, पर एमईटी के लिए एक बहुत यादगार दिन होता है. आज के दिन हम हमारे इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले एजुकेटर्स, हेल्पर्स और सभी जुड़े इस इंस्टीट्यूट से जुड़े सभी लोग जिन्होंने 15 या 25 वर्ष स्कूल में अपना एक डेडिकेशन, अपना एक सर्विस दिया है, उनको आज हम सम्मानित करते हैं. इस स्टेज से मुझे फर्स्ट नेम अनाउंस करते हुए बहुत खुशी हो रही है. A symbol of excellence. It is truly said that action speaks louder than words. But for her dedicated, systematic work speaks much louder than words. And she is not other than Mrs. Sunita Panda. Sunita ma'am ने 15 years. Yes, 10th and 9th standard children are very excited. Thank you. Just Sunita ma'am ने 15 years इनकी ब्रेक जर्नी थी. 1 year इन्होंने 2005 में ज्वाइन किया. For due to some family responsibility, सुनीता मैम ने 1 year का ब्रेक लिया. Okay. And after that, सुनीता मैम very calm, quiet, but कहते हैं ना कि hard work, a systematic work speaks louder. She is a math teacher. She is a true teacher. ये एक स्टेज से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम सभी के पीछे एक टैगलाइन होता है. We are saying that I am a 1 to 5th primary section teacher. I will not go in higher section. I am not comfortable. Higher section में हम बोलते कि नहीं, हम lower classes, junior classes में I am not comfortable. छोटे बच्चे हम नहीं संभाल पाते. बट सुनीता मैम की डिक्शनरी में कभी नो वर्ड है ही नहीं. वो कहती मैं टीचर हूँ मैम, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो आई एम वेरी कंफर्टेबल विद फर्स्ट स्टैंडर्ड चिल्ड्रन. एंड शी वाज साइंस टीचर इन फर्स्ट स्टैंडर्ड. एक बार वही संकट मोचन का नाम दिया गया था सुनीता मैम को. ड्यू टू सम ऐसा कुछ सर्कमस्टांसेस आ गए थे कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में कोई टीचर किसी कारण उन्हें रिजाइन करना पड़ा था और सुनीता मैम ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी बच्चों को पढ़ाया, 6th and 7th में भी पढ़ाया, 9th 10th में शी इज अ मैथ्स टीचर देयर, दो शी इज MSc विद बॉटनी. उन्होंने कहा मुझे मैथ्स दो. इवन 11th 12th में भी जब बायोलॉजी के क्लासेस को सुनीता मैम ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाया. तो फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड शी इज ऑलवेज रेडी. नो वर्ड कहते हैं, कभी नो नहीं है एज ए टीचर. वेरी गुड टीचर. एंड इनका जो नेचर है काम है, लेकिन शी इज वेरी मच क्लोजर टू हर स्टूडेंट्स. बहुत ज़्यादा क्लोज है. उनके पर्सनल, उनकी काउंसलिंग में अगेन नो बाइफर्केशन. 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ भी बैठती हैं, उनके पर्सनल देती हैं और छोटे छोटे बच्चों के साथ भी मैडम रहती है, उनकी भी काउंसलिंग करती है. थर्डली उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से CBSE में एकेडमिक के साथ साथ कुछ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क में भी एक पिलर की तरह हमारे साथ खड़ी है. पूरा बोर्ड एग्जामिनेशन वर्क, एकेडमिक एग्जामिनेशन वर्क उनके गाइडेंस में होता है.
Now she is appointed as external examiner, as an observer of CBSE. दूसरे स्कूल में जाकर उन्हें ये रोल भी अपना करना पड़ता है. And a very good thing जो इनका है, ज़्यादा वोकल दिखती नहीं है, but she is very much closer. उनके कोलिग्स के साथ जो रैपो है and पेरेंट्स के साथ है, जो स्टूडेंट्स के साथ है, ये दिखता नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा है. पेरेंट्स दे रिस्पेक्ट अ लॉट और उनकी बातों का बहुत वेटेज रखते हैं. सुनीता मैम हमारे साथ 15 इयर्स से जुड़ी हुई हैं. सुनीता मैम आप हमारे साथ हमेशा रहो और हमारे बच्चों को, हमारे कोलिग्स को, हमारे टीचर्स को, हमारी MET को आप जैसे टीचर की हमेशा ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी. और आज के मौके पे रावल सर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी, एंड रावल सर की जन्मभूमि उड़ीसा है और सुनीता मैम शी बिलोंग्स टू उड़ीसा, तो मैं रावल सर से रिक्वेस्ट करूँगी सुनीता मैम फेलिसिटेट करें और उनको ऑनर दें. प्लीज़ सर. भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर ही चलती है. अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता. Respected Chief Guest of today's function, PM Rawal sir, realistic Ranchor sir, persistent Prakash sir, philanthropic Ramesh ma'am, sociable Sangeeta ma'am, sophisticated Saroj ma'am, receptive Reena ma'am, Toral ma'am, Nivedita ma'am, Hetal ma'am, Ketki ma'am, all the dignitaries on the dais and off the dais, parents and all my dear children. Good morning everyone. Good morning everyone. That's nice, thank you. Wish you a very happy Republic Day. During my 15 years of this journey in this school, I learned a lot of things, either directly or indirectly. First of all, in this institution, I know that we are very strict to the discipline, and that is the first choice. Always I love the discipline, because without discipline, nothing is possible. The team spirit, that is working together, that also I love here, and I learned very well how to work in a team. One more thing I want to say here, the reading habit. Each and every year we are getting at least 3 books, and from the books only. Honesty, punctuality, creating the new ways, new ideas, implementation of new ideas, Sangam or the Samriddhi Sangam. Through that, we are creating the different students
we are able to get the talents of the students. We know the students differently by working with the different situations in the different environments. I got the chances to teach almost with every student, what Reena ma'am said, starting from the standard 1 to the standard 12. So I came across with all the students and I know each and every one, which helps me a lot in upbringing my child also. I convert to an opportunity, and that opportunity helps me a lot in the different situations. During this tenure of my working, I got different responsibility, and I am very much thankful to the management for noticing and acknowledging my contributions. I feel privileged to work under the guidance of Sir Prakash Sir institutions. I am very much thankful to each and everyone here, starting from the office staff to the Masi and each and every corners where I am working, with whom I am working. Always I get the cooperation and I love. Jai Hind, Jai Bharat. Esteemed guests, parents, ex-students and all the students present here. मैं यहाँ पे एक ऐसे हमारे साथ हमारे टीम के मेंबर, एक टीचर के बारे में बताने के लिए आपके सामने आई हूँ, जिनके लिए as a very close colleague of mine, as a very good person, एक शब्द में मैं अगर describe करूँ तो I would say the most enthusiastic, energetic and dynamic person, Pragnaven Patel. Physics teacher हमारे, जिनकी जर्नी एमिटी के साथ 15 years जुड़े हुए हैं। मैम के बारे में कुछ भी बताऊं मेरे ख्याल से इनफ नहीं है। Her sincerity helps her find new doors. Sincerity के कारण उनके सामने नए दरवाजे, नए opportunities खुल जाती हैं हमेशा। Her passion, dedication drives her towards new horizons. Having a strong purpose in her life as a teacher, as a physics teacher, as a science teacher, she doesn't have to be pushed. पीछे से हमें motivation करने की ज़रूरत नहीं है। Self motivated person है। Her self motivation makes her go ahead in full speed. जैसे full speed मैम चलती है, वैसे full speed उनका काम भी होता है। So इंट्रोडक्शन के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मैम के यहाँ हमारे स्कूल में जर्नी शुरू हुई थी लॉन्ग बैक इन 7th January 2008 में। देयर आफ्टर 15 years प्रज्ञा मैम के कम्प्लीटली सक्सेसफुली कंप्लीट हुए हैं। मैम का अगर हम बायोडेटा देखें तो उनके जो उत्साही नेचर है, इसके वजह से हमेशा कभी भी पीछे नहीं हटे हैं। एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उसको 100% उन्होंने निभाया है। और इस तरह से उनके बायोडेटा में बहुत सारे ऑर्नामेंट्स जुड़ गए हैं। सो आपके सामने मैं कुछ रखना चाहती हूँ विच इज़ रियली अ ग्लोरियस। बहुत ग्लोरीफाइड हुए हैं, स्कूल भी बहुत ग्लोरीफाइड हुआ है मैम के साथ साथ। मैम ने 2010 में IIT कानपुर में उत्साहित फिजिक्स टीचर्स की वर्कशॉप हुई थी, जहाँ पे
सारे स्टेट्स के टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट किए थे। उन्होंने वहाँ पे प्रोफेसर H.C. वर्मा, आप सबने सुना होगा इनके बारे में, बहुत फेमस साइंटिस्ट है, फिजिक्स के एक्सपर्ट, उनके साथ हैंड टू हैंड काम करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी। अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। She used to take initiative to take the students to डिफरेंट इंस्पायर साइंस प्रोग्राम्स अटेंड करवाने में लेके जाती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओलंपियाड्स, स्कॉलरशिप्स, एग्जाम्स जैसे IAPT, PRL, KVPY, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च के द्वारा कंडक्टेड सारे एग्जामिनेशंस को प्रज्ञा मैम बहुत एफिशिएंटली हैंडल करती हैं। मैम ने एक बार PRL में, दैट इज़ फिजिकल रिसर्च लेबॉर्ट्री अहमदाबाद में, जहाँ पे स्पेस साइंस के ऊपर रिसर्च वर्क होता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट प्रेजेंट किया था एज अ टीचर इन ईयर 2019-20 सेशन में, और जिसके लिए PRL की ऑफिशियल वेबसाइट में उनकी फ़ोटो भी है प्रेजेंट करते हुए। अगेन अनदर ज्वेल इन द क्राउन ऑफ एमिटी विच वी हैव रिसीव्ड बिकॉज ऑफ प्रज्ञा मैम। मैम ने 2 बार नेशनल लेवल साइंस फेयर में बच्चों को ले जाके पार्टिसिपेट करवाया कंसेक्यूटिवली, 2014-15 में, 2018-19 में। अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट में हमारा स्कूल सिलेक्ट हुआ था एंड वी गॉट अ ग्रांट ऑफ 12 लाख रुपीज़ टू सेट अप अटल टिंकरिंग लैब। इसके लिए प्रेजेंटेशन लेके पुणे जाके प्रोजेक्ट हमारे लिए हासिल करा के लाए थे। इसके selected as a resource person to train the physics teachers for Gujarat board for 1 academic year. Last but not भरूच ने नेशन बिल्डर अवार्ड से भी मैम को सम्मानित किया है। The list is unending. So describing Pragna ma'am in one word, again I would like to say, हमारे उत्साही फिजिक्स टीचर who never knows to say no to anything. Summing up, Pragna ma'am, a few lines for you. Live your truth, express your faith, share your enthusiasm. It is like a contagious thing which every one of us should get from you. Take action towards your dreams, embrace your blessings, and make today's day worth remembering. I would request our Managing Trustee Sir, Ranchosh Sir, to felicitate our very own Pragna ma'am with an honor. बड़ी स्पीच तो नहीं लेके आई, लेकिन जो मेरे मन में है वो बोलने वाली हूँ। सुप्रभात। मंचस्थ महानुभाव, शिक्षकगण, मेरे प्यारे विद्यार्थी, एक स्टूडेंट आज आए हैं, और यहाँ पे वाली मित्रों, आप सबको मेरी तरफ से प्रजासत्ताक दिन की शुभकामनाएं। आज मुझे 15 साल के लिए सम्मानित किया गया, लेकिन ये गौरव पहला नहीं है, दूसरी बार है। आपको नहीं पता है, लेकिन मैं बता दूं कि 10 साल जब हुए थे तब भी मेरा सम्मान किया गया था, और इसके लिए मैं कमेटी शाला को आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे याद है कि वो दिन मैंने ऐसा कुछ कहा था, मैं तो सरप्राइज था मेरा तो, लेकिन मैंने ऐसा कहा था कि अभी एक कोरा कागज की तरह मैं आई थी और मैंने यहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी, लिखना स्टार्ट किया था। लेकिन आज ऐसे गर्व से बता सकती हूँ कि मैंने कुछ लिखा है, लेकिन अभी लिखना बाकी है। मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आया। बाहर थे इंडिया के, उनका फोन आया
और मुझे बहुत हिम्मत दी थी आगे बढ़ने की। एमिटी ने मुझे बहुत मौके दिए और कहीं मैं सफल भी रही, कहाँ पे भी असफल भी रही, फिर भी कभी मुझे ऐसे नहीं बताया कि भी ऐसा क्यों हुआ। हर बार मेरा गुस्सा बढ़ाया और मैं आगे बढ़ती गई, बहुत कुछ सीखा, अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी भी है। मेरा व्यक्तित्व निखारने के लिए एमिटी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मेरे परिवार से मुझे सपोर्ट मिला, एमिटी से सपोर्ट मिला, एक स्टूडेंट जो यहाँ पे अभी नहीं पढ़ रहे उनका प्यार मिला, यहाँ पे जो बैठे हैं उनका भी बहुत मुझे प्यार मिला। और ऐसे प्यार से मैं अपनी जर्नी आगे ही आगे बढ़ाने वाली हूँ। बस मुझे एक कविता बहुत पसंद है, आप सबको भी होगी, कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। गणतंत्र दिन की सबको शुभकामनाएं। मुझे बहुत खुशी है कि साइकिल लेकर आ रहे हमारे एक्स स्टूडेंट आज गाड़ियां लेकर आए हैं स्कूल में। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी तरक्की देखकर हमारा सीना चौड़ा हो रहा है और यही शुभकामनाएं यहाँ बैठे सभी बच्चों को दे रहा हूँ। लेकिन यात्रा सिर्फ साइकिल से कार तक की नहीं होती है, वो दिखाने के लिए हमने आपके सामने एक ऐसे चीफ गेस्ट रखे हैं जो आपको बताएंगे कि हम ये देश के लिए क्या कर सकते हैं। आज के हमारे गणतंत्र दिन के अतिथि रिस्पेक्टेड BM रावल सर, शाह सर, रमेश मैम, मेरे साथी मित्र, विद्यार्थी, अभिभावक, एक्स स्टूडेंट, सबको मैं आज के ये दिन के लिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज मेरे दाएं और बाएं और दोनों बोलूँ कि मैं राइटी हूँ, मेरे दोनों राइट हैंड, जिसकी वजह से इस स्कूल का जो बैक ऑफिस चलती है, जिससे स्कूल आप तक पहुंच पाती है। आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ाते हैं, लेकिन हमें पेरेंट्स तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरह से कम्युनिकेशन करने पड़ते हैं। एक है लिखकर और दूसरा फोटो भेजकर। ऐसे दो मित्रों का आपसे परिचय करवा रहा हूँ। आज एक कोइंसिडेंस है दोस्तों, एमिटी में हमेशा बैटन रैली चलती है, यहाँ पहुँच गया मुझे पता नहीं चला। इसी तरह से यहाँ थोड़े साल पहले हमारे ऑल इन वन हमारे चंद्रकांत भाई यहाँ पीटी टीचर थे, ड्राइंग टीचर थे, बस सब कुछ थे, दिन रात मेहनत करते थे। और चंद्रकांत भाई जाम्बिया गए और उनके पीछे अल्पेश सर को कैमरा पकड़ा दिया लिटरली पकड़ा दिया, जैसे आज अल्पेश सर ने नरेश भाई और हमारे दीपक को कैमरा पकड़ा दिया। तो ये दोस्तों हमारी एक ट्रेडिशन रही है कि ये काम हमेशा चलते रहते हैं। यहाँ फिजिक्स टीचर हमारे साई प्रसाद रावल थे और उन्होंने, वो तो ऑफकोर्स थोड़ा गैप था बीच में, लेकिन प्रज्ञा बहन ने वही स्पिरिट से अपनी, मैं अभी बोलने वाला था कि प्रकाश की गति है प्रज्ञा बहन दौड़े से અને सजीव ने समझता सुनीता पांडा। अब ये सब लोग इसलिए हमें मिले यहाँ कि वो सीखते रहे। दोस्तों आज हम ये इसलिए आपके सामने कर रहे हैं कि सभी चीज़ें सीखने वाली सभी चीज़ें किताबों में नहीं होती है, वो एनवायरनमेंट आपको सिखा रहा है। अभी मैं मेरे 12th के स्टूडेंट को पिनल का परिचय करवा रहा था। पिनल हाई कर बता रहे दोस्त, पिनल भी ऐसे ही आपके साथ बैठा था एक दिन। आज पिनल एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, ये उनका हॉबी है और वो फोटोग्राफी का क्लब चलाता है और ऑफकोर्स अपना प्रोफेशनल ग्रोथ तो हो ही रहा है, पर्सनल ग्रोथ हो रहा है। दोस्तों ये सब अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं। मैं ऐसे हमारे ड्राइंग टीचर जिसको आपको बहुत इंतजार होता है, हफ्ते में 2 ही तो लेक्चर आते हैं, बाकी सब फिजिक्स बायोलॉजी वाले पकाते हैं हमें। तो ऐसे टीचर का जब आपको इंतजार होता है, अल्पेश सर हमेशा
आपके साथ रहकर आपको खुशियाँ बांटते हैं। आपकी ड्राइंग हम सम्मान करने जा रहे हैं। अल्पेश सर आइए। और नरेश सर, ड्राइंग तो सबका सब्जेक्ट है, ड्राइंग तो सबका सब्जेक्ट है। अल्पेश सर आओ। स्टूडेंट बैठिए, अल्पेश सर के बारे में थोड़ा ज़्यादा बताना है। अल्पेश सर है ड्राइंग के टीचर, लेकिन उन्होंने यहाँ से कई सारे बच्चों को आर्किटेक्ट लेने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। अल्पेश सर के बहुत सारे दोस्त आज बॉलीवुड में और हॉलीवुड में फोटोग्राफी करते हैं, फोटोशॉप करते हैं। अल्पेश सर ने कैमरा भी यहीं से पकड़ा, फोटोशॉप भी यहाँ सीखे। और मुझे बहुत दोस्तों बताते हुए खुशी हो रही है कि कोरोना टाइम पर हम सब एक दूसरे को मिल नहीं रहे थे, तो आज दोपहर में गाना गाने वाले हैं, मेरा पिया गया रंगून, और वहाँ रंगून और देहरादून का कांटेक्ट कैसे होता है, ऐसा हमारे अल्पेश सर उनके गांव में मेरे घर, लेकिन हम तीनों लोग और हमारे टीचर अपने घर, लेकिन सब जगह पर हम हमारे कंप्यूटर पर बैठकर आपको कम्युनिकेशन कर रहे थे। अल्पेश सर कल सुबह में 7 बजे से रात को 10 बजे तक स्कूल में ही थे, और इनके दोस्तों की वजह से, उन सब की वजह से आज ये कुछ ब्यूटीफुल देख रहा है स्टेज, वो उनकी बदौलत है। दोस्तों, हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे पास ऐसे ड्राइंग टीचर हैं। सिर्फ वो नोटबुक में ड्राइंग नहीं करवाते हैं, लेकिन आपके दिलों को भी रंगीन करते हैं, आपको खुशियाँ बांटते हैं। कलर गिव्स अस अ प्लेजर। और थोड़ा मैं आउट ऑफ ऑर्डर जाकर अल्पेश सर को जिसने बैटन पकड़ाई ऐसे सीढ़ी पड़े को स्टेज पर बुला रहा हूँ, और उनके साथ साथ संगीता मैम को भी मैं इनवाइट करता हूँ, हमारे अल्पेश सर का आज सम्मान करें। अल्पेश सर। Good morning all of you. आज के मेहमान श्री BM रावल सर, शाह सर, रमेश मैम, संगीता मैम, रीना, प्रकाश सर, रोरल मैम, केटकी मैम। अभी जो मैंने यहाँ देखा है, फील किया है, जो सीखा है, वो बहुत ही शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। पहला तो यही कि मैं ये जो माइक पर बोलने आया, वो सबसे पहले मैंने पहली बार यहाँ से जब बोला था तब लिटरली मुझे बुखार आ गया था, और आज ये बोलने की हिम्मत करता हूँ तो ये एमएटी ने ही मुझे सिखाया है। और मैं एक ही लाइन को पकड़ के चलता हूँ, यह स्कूल हमारी एमएटी जीने की राह सिखाती है। और जितना डीप में जा सकूँ इतने डीप में जाने की कोशिश करता हूँ, और जहाँ से जो कुछ भी सीखना मिले वो सीखने की कोशिश करता हूँ। आज मैं अपने आप को ऐसा एक भी काम नहीं है जहाँ पर मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब मुंह में से ना शब्द कभी नहीं निकलता है, और सभी चैलेंजेस को पकड़ के जब करते हैं तो उसमें से बहुत कुछ सीखना मिलता है।
वो बार बार मैं क्लास में भी आपको बोलता हूँ और बहुत बार इसकी चर्चा भी करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ही फॉलो करता हूँ, तभी मैं दूसरे को बोलता हूँ, नहीं तो मैं ना करूँ तो मैं किसी और को नहीं बोल सकता हूँ। तो यही लाइन को पकड़कर मैं चलता हूँ। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आपसे। ऐसे ही बोलने की कभी आदत नहीं थी, तो यहाँ आते आते जब हमने पीटीसी शुरू किया तो सर ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर पे ठोक दी। बोले आपको टीएलएम पढ़ाने जाना है। अब कभी बड़े क्लास में गए नहीं थे और इतना बोलना नहीं आता है आर्ट टीचर को, तो और बोलते भी नहीं हैं, पर फिर भी गया और उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि पढ़ाना है तो पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते 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 पता नहीं बाद में टेट की एग्ज़ाम आई तो 2012 में मैंने वही पीटीसी के अंदर पढ़ाने का जो अनुभव था, वही अनुभव से मैंने टेट एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट ट्रायल में पास होकर मैं आया। तभी मुझे एक अच्छा फीलिंग आया कि अच्छा हुआ सर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मैंने ये किया। तो कहने का मतलब, कोई भी जब हम वर्क शुरू करते हैं, कोई भी काम करनी शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि ये क्या, मैं ही सर को दिख रहा था मुझे दे दिया, पर वो काम करते करते वो काम में से इतनी सारी चीज़ें सीखने मिलती है कि वो मूल्य कभी आप चुका नहीं पाओगे। अभी आज 15 साल पूरा करने पर सर ने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, वो देख, तो सबसे पहले तो मैं एमएटी को थैंक यू बोलूँगा। थैंक यू सर। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस एक ही चीज़ है, करते रहो। मैं वहीं बैठे बैठे कब खड़ा हो जाऊं, क्योंकि कभी बैठता नहीं हूं, तो बैठने की आदत भी नहीं है। तो मुझे खड़ा होना था, पर पकड़ पकड़ के बिठा के रखा, नहीं बैठो बैठो। मैं बोला नहीं, मुझे तो ऊपर जाना है या मैं घूमना है। तो ऐसा है, तो अपॉर्चुनिटी पकड़ो और जितनी बार आप टक लोगे और उस काम, तो आप भी जो भी आपको चांस मिलता है उसको छोड़ो मत और सीखो, तभी तो सीखते रहोगे और काम होता रहेगा। बस थैंक यू। थैंक यू विकास भाई, हमें बहुत खुशी है कि आप जैसे चित्र शिक्षक हमारे साथ हैं, जैसे जिसका मैंने ऑलरेडी राज के बारे में बता रहा हूँ। भरत भाई, मैं बोलता रहूँगा तब तक अब आ जाइए। लेकिन मैं इसे रिक्वेस्ट है भरत भाई को सम्मान के साथ स्टेज पर लाइए। विशेष सर आप भी आए हैं तो उनको लेकर आइए, कभी आपका भी सम्मान करेंगे। दोस्तों, भरत सिंह राज पर हमारे यहाँ अजीत सिंह राज नाम के एक दोस्त थे, वो यहाँ बच्चों को ड्राइंग सिखाते थे। बाद में तो उनका खुद का ही एक ऑफसेट प्रिंटिंग है, और ये भरत भाई को उन्होंने रेकमेंड किया कि एक अच्छा लड़का है और सुपरमार्केट में आता है और अच्छी सारी उनके पास टाइपिंग की स्पीड है। आज तक भरत भाई ने हमें नहीं बताया कि वो टेराफॉन्ट कैसे यूज़ करते हैं और उसकी की क्या है। वो हमेशा अपना सीक्रेट अपने पास रखते हैं, लेकिन उनमें उनके मास्टरी है। भरत भाई ने, मैं काउंट कर रहा था लेकिन नहीं कर पाया, करीबन लास्ट 22 to 25 मैत्री सेतु के इश्यू के जितने भी एक किताबें उन्होंने टाइप की है, तो गीगाबाइट से ऊपर क्या होता है मिनट, टेराबाइट, तो एक पूरी एक आपकी हार्ड ड्राइव भर जाए, इतना सारा टाइपिंग भरत भाई ने किया है। वो आंख बंद करके भी टाइप कर सकते हैं, खुली आंख से तो बहुत कुछ अच्छा करते हैं। और ये दोस्तों, उनके पास जो स्पीड है, उनके पास वो टेक्नोलॉजी आए थे तब सिर्फ टाइपिंग जानते थे, लेकिन धीरे धीरे अल्पेश सर जो कर रहे हैं वो भी भरत भाई सीख रहे हैं, भरत भाई दूसरों से सीख रहे हैं। हमेशा एक ही बात है, आप ये कैसे करते हैं उसकी हमेशा वो शॉर्टकट में मानते हैं, वो हमेशा शॉर्ट की पकड़ के काम करते हैं।
और इसी तरह से वो काम फटाफट कंप्लीट करते हैं। दोस्तों, एक बार हमने पीटीसी शुरू किया, पीटीसी के बच्चों को हॉस्टल दिलानी थी, तो हॉस्टल में रेक्टर बनने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि पीटीसी, आई थिंक जो लोग हॉस्टल में पढ़े उनको पता है, हॉस्टल में बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन उनका रेक्टर ही होता है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भरत भाई ने हमें दी, उनके काउंटर पार्ट ने भी, उन्होंने उनमें हेल्प की। ऐसा करके करीबन जितने साल हमने पीटीसी हॉस्टल चलाई उस टाइम वो यहाँ रहे, बहुत अलग अलग थ्रिलिंग एक्सपीरियंस उनको हुए हैं। हर रोज रात को 10 बजे 11 बजे एक मैसेज आता था कि सर आज हॉस्टल में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो क्राइसिस मैनेजमेंट भरत भाई सीखे, और ख़ास करके वो जो काम देते हैं वो जल्दी से कंप्लीट करके एक दूसरा काम हमेशा उठा लेते हैं। उनको रिमाइंडर कम देने पड़ते हैं, उनको उनके काम याद रहते हैं। थोड़े लास्ट ईयर हमारे ऑफिस में बहुत सारे अकस्मात हुए, ऐसा बोलूँ, हमारे प्रवीण भाई नहीं रहे, बाद में दूसरे फ्रेंड्स भी अलग अलग रीज़न से जब उन्होंने छोड़ा तो ऑफिस हमारा स्टाफ बहुत कम हो गया। लेकिन उन्होंने हमने महसूस नहीं करवाया कि हमारे पास कम स्टाफ है, इतने स्टाफ से भी अच्छी तरह से काम शुरू कर दिया। और गवर्नमेंट के साथ जो लाइजनिंग करना पड़ता है वो हमारे भरत भाई बहुत अच्छी तरह से सेट कर देते हैं। हमें बहुत खुशी है भरत भाई के अब जैसे अलग अलग काम करने वाले एक एडमिन स्टाफ हमारे साथ है, और साहस सर और मेरा भरत भाई के साथ हमेशा पाला पड़ता है। तो मैं साहस से रिक्वेस्ट करूँगा कि भरत भाई का एक बार फिर से सम्मान करें। और अब जो अपने विचार जो टाइप करके लाए हैं यहाँ प्रस्तुत करिए। पर तो सब काम एडवांस में करते हैं, उनको अपना स्पीच जो बोलना था आज तो वो भी टाइप करके लाए हैं। राहुल साहेब, शाह साहेब, रमेश मैडम, मीरा मैडम, तमाम विभागના વડાઓ અને પ્રેક્ષકગણોને જ્યારે એમઈટી શાળા 15 વર્ષની સેવા આપી એ બદલ જે મારું સન્માન કર્યું છે એ બદલ સૌનો હાર્દિક પૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરું છું। આ સોરામાં જ્યારે હું જોડાયો ને સૌના માર્ગદર્શન હેઠળ દરરોજ મને નવું નવું શીખવાનું અને જાણવાનું મળ્યું। આદરણીય શાહ સાહેબ સાથે એમના 22 જેટલા પુસ્તકોમાં ટાઈપિંગ કરતાં કરતાં ભાષાનું જે મારી પાસે જ્ઞાન આવ્યું છે એ અહીંયાથી મને મળ્યું છે। અમારા ભરાઈ આવે છે। એમને મને ઓફિસમાં સભ્યતા, વાતચીત અને વ્યવહાર શીખવાડ્યા। જ્યારે હું ગામડામાંથી શહેરમાં રહેવાની જે મને પ્રેરણા મળી તેના થકી મારા બાળકો આજે એમઈટી જેવી નામાંકિત શાળામાં હું એમને અભ્યાસ કરાવી રહ્યો છું। એમઈટી શાળા પરિવારે પ્રત્યક્ષ અને પરોક્ષ રીતે મારા સુખ દુઃખમાં સતત સહભાગી રહી છે। જ્યારે એમઈટી પરિવારે મારા પર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ પરિપૂર્ણ કરવા હું હર હંમેશ પ્રયત્ન કરીશ। આભાર। શુભકામના। પુસ્તક સ્વતઃ શિક્ષક ગુરુ છે અને પુસ્તકાલય એ શાળા છે। શબ્દબ્રહ્મ અને સરસ્વતીનો નિવાસ એ પુસ્તકાલયમાં છે। શાળાને પ્રાણવાયુ આપવાનું કામ એ પુસ્તકાલયનું છે અને વાંચનાલયને જીવંત રાખવાનું કામ એ આપણા ગ્રંથપાલનું છે। આપણી શાળાના ગ્રંથપાલ રાજુલબેન ભાવસારને પુસ્તકો સાથે સીધો સંબંધ છે। પોતાના લાઇબ્રેરી સાયન્સના અભ્યાસનો ઉપયોગ કરી પુસ્તકાલયને વધુને વધુ સમૃદ્ધ બનાવવા માટેનો ઉપયોગ કરી રહ્યા છે। વિદ્યાર્થીઓમાં વાંચન રસને જાગૃત કરવા અવનવા પ્રયોગો કરી રહ્યા છે। વળી શાળાના પુસ્તકાલયમાં કયા પુસ્તકને ક્યાં અને તેમાંથી કયા પ્રકારની માહિતી મળશે તેની જાણકારી પણ રાજુલબેન સુપેરે આપે છે। શાળાની લાઇબ્રેરીને ડિજિટલ લાઇબ્રેરીમાં ફેરવવાનું કામ પણ તેમણે બખૂબી નિભાવ્યું છે।
હું સંગીતાબેનને વિનંતી કરું કે તે રાજુલબેનનું સન્માન કરશે. મંચસ્થ મહાનુભાવો, શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ, આપે મને જે લાઇબ્રેરીનું સુકાન અહીં સોંપવામાં આવ્યું છે તે બદલ હું એમટી શાળા પરિવારનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પરિચિત નાની પંક્તિ છે, પુસ્તકો સંગે દોસ્તી. અસંખ્ય શબ્દો પાને પાને ભેગા મળી બનાવે પુસ્તકો, ભેગા મળી બનાવે પુસ્તકાલય. કબાટે કબાટે ખાનાઓ ભરે પુસ્તકોને તમે કદી વાંચ્યા છે, સાંભળ્યા છે? એકવાર, બસ એકવાર ધ્યાન દઈ વાંચી જો, સાંભળી જો. તમને આમાંથી એક નવી દ્રષ્ટિ, નવી સૃષ્ટિ અને નવું સર્જન કરવાની પ્રેરણા મળશે. એકવાર, બસ એકવાર તમને આમાંથી એક નવી દ્રષ્ટિ, નવી સૃષ્ટિ અને નવું સર્જન કરવાની પ્રેરણા મળશે. થેન્ક યુ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શાળાના પ્રાંગણને સ્વચ્છ અને સુંદર બનાવવા માટે જેનો મહત્તમ ફાળો રહ્યો છે એવા આપણા સેવક ભાઈ બહેનોમાં ભારતીબેન માસ્ટર, જેઓ 15 વર્ષથી આપણી શાળામાં અવિરત કાર્ય કરી રહ્યા છે. ભારતીબેને પ્રથમ વર્ષ BA સુધીનો અભ્યાસ પોતાની સામાજિક જવાબદારીને લીધે છોડવો પડ્યો અને ત્યાર પછી તેઓ મુખ્ય પાસું જોઈએ તો અનિવાર્ય સંજોગોને કારણે એમને ભરૂચ છોડવું પડ્યું હતું 1 વર્ષ માટે, અને તેઓ અંકલેશ્વરના ઇન્ટિરિયર ગામમાંથી અહીંયા ભરૂચ અપડાઉન કરતા હતા. આપ સમજી શકો છો, શાળાનો સમય 7 વાગ્યાનો હોય તો એમને અંકલેશ્વરથી કેટલા વાગે નીકળવું પડ્યું હશે. આમ છતાં પણ ક્યારેય ભારતીબેને સમય બાબતે અમને ફરિયાદ કરવાનો મોકો નથી આપ્યો. આવા નિયમિતતાના આગ્રહી અને પોતાના કામમાં ચોક્કસ એવા ભારતીબેનને સન્માનિત કરવા માટે હું પ્રમેશબેનને વિનંતી કરું છું. પ્લીઝ પ્રમેશબેન. સરસ મજાના તરવા માંડે એવા અમારા હેમાબેન. હેમાબેનને ઘણા એવા માઠા પ્રસંગો ભણ્યા અને એમાં એમને પોતાની નિરાશાને ખંખેરીને સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત કરી પોતાનું પુનઃ કામ માટે જોડાઈ ગયા એવા હેમાબેન ખૂબ જ મહેનતુ અને બીજાના કામને મદદ કરવાની ભાવના ધરાવનારા હેમાબેનને સન્માનિત કરવા માટે હું સંગીતાબેનને આમંત્રિત કરું છું. સંગીતાબેન, પ્લીઝ.
गर्व थाय छे। अमारी शाळा अमने अभ्यासने लगती प्रवृत्तिओमां तो प्रोत्साहित करे ज छे, परंतु तेनी साथे साथे विविध आंतरिक कलाओने निखारवानो अवकाश पण पूरो पाडे छे। ते पछी चित्रकला होय, विज्ञानने लगती प्रवृत्ति होय के पछी नृत्य होय। नृत्य मननो भाव दर्शावती कला है। अपनी भारतीय संस्कृति मान्यता अनुसार देवों द्वारा नृत्य ने स्वर्ग में धरती पर लाववामां आव्युं हतुं तेम मानवामां आवे छे। सदियोंथी चालती आवेली नृत्य कला बतावीशुं आज तमने। सदियोंथी चालती आवेली नृत्य कला बतावीशुं आज तमने। नृत्यना तालथी आनंद अपावीशुं तमने। पवनना लहर जेवुं, नदीओना तरंग जेवुं, पर्वतना कहर जेवुं अने मनने मोहे तेवुं नृत्य लईने अमारी नृत्य शाळानी भरतनाट्यमनी विद्यार्थीओनो देशभक्तिनुं गीत स्वरूपे तेने रजू करशे। East or west? East or west? Now I request our Honorable Chief Guest, Dr. B.M. Rawal, for an occasional address. Please, sir. Good morning to all of you. Good morning to all of you. Good morning, sir. Thank you.
wish you happy Republic Day. In the schedule, my speech is not there, that I know. But I'm extremely happy to have Dr. Rawal with us. आप में से 70-80% लोग ने ये ओरिजिनल स्कूल नहीं देखी, वैसे देखने वाले 2 लोग यहाँ हैं, एक चंद्रकांत भाई है और एक रावल साहब है। रावल साहब वॉज ए प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री in Narmada College. Narmada College is a great college with a wonderful staff. One of them was Rawal sir. It was the beginning of Rawal sir's career. हम थोड़े घबरा रहे थे रावल साहब के प्रोफेसर्स को यहाँ 11-12 के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम के लिए बुला सकते या नहीं। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हुई है, हो रही है। Just you go to, I think, 90s, 91, 92. तभी रावल साहब यहाँ आते थे। मुझे आते थे में रस नहीं है। मुझे इंटरेस्ट ये है कि आज जो नॉर्म्स, एथिक्स, वैल्यूज वगैरह एमईटी में है, वो ऐसे लोगों की बदौलत है। रावल साहब इज नोन एज अ वेरी ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्डवर्किंग। प्रो वाइस चांसलर थे, मैं और प्रकाश भाई कई बार उनको मिलने जाते थे, वहाँ भी वाइब्रेशंस यही होता था। मैं अभी उनसे बात कर रहा था कि एजुकेशन की स्थिति दिन ब दिन अच्छी नहीं हो रही है, बट रावल साहब इज ए होप। रावल साहब, रियली आई एम वेरी हैप्पी टू वेलकम यू। थैंक यू रावल साहब। नमस्कार। ભારતીય ગણતંત્ર રાષ્ટ્રપ્રેમી વ્યક્તિ માટે અને એક રાષ્ટ્ર માટે દર વર્ષે એક આશાની કિરણ નહીં, સોનેરી કિરણ લઈને આવે છે અને આપણે ઉજવતા હોઈએ છીએ એક ઉત્સવ તરીકે। એકમેકને આજના શુભ દિને શુભકામના। ગણતંત્ર ભારત આટલા વર્ષોનું નહોતું, નથી અને નથી રહેવાનું। કારણ છે કે ભારત તો વંશ પરંપરાગત ગણતંત્ર રહ્યું છે અને એ જ અનુભવ આપણને આગળ મળતો રહેશે। પ્રારંભ કરીશ માનનીય શાહ સાહેબ, આચાર્યશ્રી, આદરણીય શ્રદ્ધેય ગુરુજન જેમના સન્માન થયા છે, અને પ્રિય વિદ્યાર્થી અને એલ્યુમનાઈ એમિટિયન્સ બધા જ હાજર છે। એ બધાને પણ શુભેચ્છાઓ, શુભકામનાઓ એક સાથે ફરી એકવાર। એમિટીનો પરિચય હું પણ થોડોક પાછળ ગયો, ઇતિહાસ નહીં ભણાવો। આર્કિટેક્ટ અને આપણા સંસ્કૃતના જૂના શ્લોક જોઈએ। કર્ણાટક સ્ટેટ યુનિવર્સિટી સંસ્કૃતની પણ છે અને ત્યાં ખૂબ સરસ અધ્યયન કાર્ય ચાલે છે। એમાં આ બાબત પણ આવી, આજે શાહ સાહેબે કહ્યું હોય, એક બિલ્ડિંગ નવું બને એના પછી 5-15 વર્ષ થાય, નવાચાર છે, શિષ્ટાચાર છે, એ વ્યવસ્થાઓ બદલાતી હોય અને નવા બિલ્ડિંગ પણ બનતા હોય છે। આજકાલ આર્કિટેક્ટ એને કહે છે કે તમારી સોસાયટીમાં તમે 45-50 વર્ષના રહો તો ઇટ્સ એ ડિકેઇંગ બિલ્ડિંગ, ડિકેઇંગ સોસાયટી। પણ સંસ્કૃતમાં તો આનું ઉદાહરણ વર્ષો પહેલાંનું છે કે તમે જ્યારે જુઓ કે તમારી સાથેનો માણસ એ સ્ટેજ પર આવતો જાય, એ લેવલ પર આવતો જાય, ત્યારે તમને લાગે કે હવે તમે જ્યાં છો તમારે એનાથી આગળ વધવાનું છે। અને જ્યારે એમઈટીના સંસ્કાર કહે છે કે અમારે હંમેશા એક પછી એક પગથિયે આગળ વધવાનું છે, તો એ જ આર્કિટેક્ટનો મુદ્દો, પરિકલ્પના, સંકલ્પના કે ના હંમેશા આપણી સાથે કોઈ સાથ આવે તો એના પછી આપણે થોડુંક આગળ વધવાનો પણ વિચાર કરવો જોઈએ। અને નવા આર્કિટેક્ચરલ ડ્રોઈંગ અને ડિઝાઇન સંસ્કૃતના શ્લોકના ઉદાહરણ છે અને સ્ટેટ યુનિવર્સિટી આ બાબતમાં રિસર્ચ કરી રહી છે। એ જ વસ્તુ આપણને સમાજમાં દરેક જગ્યાએ દેખાય છે। તો જ્ઞાન, વિજ્ઞાન અને પરંપરા ભારતની
આપણને ક્યાંથી ક્યાં લઈ જાય છે એના ઉદાહરણો એકથી વધારે છે, એકાધિક છે. પાઈ નામનું પિક્ચર જોયું હશે, પણ પાઈની જે વેલ્યુ છે એ પણ આપણને ખબર છે. ચોપડીઓમાં વાંચતા થયા, લાઇબ્રેરીમાં જઈને પુસ્તક પણ જોઈ હશે. કોઈ કહેતા હતા 34 ડેસિમલ સુધી, અપ ટુ 34 ડેસિમલ્સ, એના જે કેલ્ક્યુલેશન્સ છે, એના જે ફોર્મ્યુલા છે, એના ઉપર પણ રિસર્ચ ચાલે છે. PRLમાં જઈએ, ખૂબ મજા આવે છે, પણ ત્યાંના કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે મળીએ છીએ તો આજકાલ ગુજરાતની પણ કેટલીક યુનિવર્સિટી એસ્ટ્રોનોમી પર રિસર્ચ કરે છે, અને એમને જે પણ બેક રેફરન્સીસ મળે છે એ આપણા જ આવા એસ્ટ્રોનોમી, પંચાંગ, લીપ યર આવી ગયું અંગ્રેજી વિજ્ઞાનમાં, પણ આપણા જે ગણિતકીય વિદ્વાનો હતા, જે ખગોળ શાસ્ત્રીઓ હતા, ભરૂચ એમાંથી એક મુખ્ય સ્થાન છે. જરાક આગળ વધશો તો ખબર પડશે કે ભરૂચ કેમ આટલું બધું ફેમસ છે ખગોળ વિજ્ઞાન. આ વિષયો પણ બદલતા પરિવેશમાં આપણે જ્યારે એક સરસ ગીત સાંભળ્યું કે મેરા ભારત બદલ રહા હૈ. ભારત તો પહેલેથી જ બદલાયેલું છે અને દરરોજ બદલાવા માટે આપણી માનસિકતા તૈયાર કરતું હોય છે. પણ એટલું જ કે જ્યાં સુધી આપણે આપણો ઇતિહાસ, આપણી વૈજ્ઞાનિક પરંપરાઓ એનો પરિચય નહીં થાય તો આપણે જે બદલાવ છે એ ખાલી સ્ટેજ કે ગીત સુધી રહેશે. આપણી સંસ્કૃતિમાં જ્યાં સુધી ના આવે ત્યાં સુધી બદલાવ આપણી પેઢીને નથી મળતો. નેક્સ્ટ જનરેશન સુધી પહોંચાડવું હોય તો જરૂરી છે કે આ મુદ્દાઓ આપણી સાથે હોય. શાંતિથી બેઠા હોઈએ અને એક સાથે નોબેલ પ્રાઇઝ મળી જાય છે, આપણે ભેગા થઈને 11 કરીએ, 15 દિવસે ફાસ્ટિંગ કરીએ તો નોબેલ લોરેટ બીજા કોઈ હોય છે. પરંપરાઓ કે વિજ્ઞાન તો ભારતીય સંસ્કૃતિનો છે અને નોબેલ પ્રાઇઝ બીજે જાય છે. તમે જોયું હશે કે એક કરતાં વધારે નોબેલ પ્રાઇઝ આપણી પરંપરાઓના વિશ્વમાં મળ્યા છે વૈજ્ઞાનિકોને. કારણ કદાચ આપણા સિલેબસમાં નથી એવું નથી. આપણા જે વડીલો ઘરમાં જે કામ કરે છે, દાદા દાદી, એમની સાથે આપણી જે વાતચીત કરવાની પરંપરા છે, જે આવરી છે, એ ના હોય તો આ બધું થઈ શકે છે. તો વૈજ્ઞાનિક પરંપરાઓમાં હું જે જન્મસ્થાનમાંથી આવું છું, ભુવનેશ્વર, એવું કહેવામાં આવ્યું કે સિટી ઓફ ટેમ્પલ્સ, એટલા બધા મંદિરો છે. પણ ગુજરાતમાં પણ એવું એક મંદિર છે કોણાર્કના જેવું. તમારે સવારનું પહેલું કિરણ આ દિવસે આ જગ્યાએ આ રીતે આવે તો સીધું જ મંદિરના મુખ્ય મૂર્તિ ઉપર જ આવે. આવી ગાણિતિકીય સંરચના, આવા મેથેમેટિક્સ કયા લેપટોપથી, કયા સોફ્ટવેરથી કરવામાં આવ્યા હશે? સીધો ઉત્તર છે વૈદિક ગણિત. એક એક શ્લોકમાં તમારા એરિથમેટિક, અલ્જેબ્રા, ટ્રિગ્નોમેટ્રી આવી જાય છે, એના ઉત્તરો મળવા માંડે છે. આવા વિષયો, આવી વ્યવસ્થાઓ આપણી પાસે છે, રહેવાની છે. કે આપણી પાસે એવા આદર્શ ગુરુજનો પણ છે જ્યાં વાંચે છે, એવી પુસ્તકાલયો કે છે જ્યાં બધું ભેગું કરવામાં આવે છે. હું જોતો તો 1.5-2 કલાકથી બધા જ આટલા ઠંડા પવનમાં બેઠેલા છે. એ માનસિક ગરમી ક્યાંથી આવે? ભાઈ આપણે સાથે બેઠા છીએ અને ઠંડી નથી લાગવાની તો નથી લાગતી. આ પણ એક વૈજ્ઞાનિક પ્રયોગ છે. યોગને આપણે વિજ્ઞાન કહી શકીએ કે છે? આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર સુધી યુનાઇટેડ નેશન્સ કે છે હવે બધા જ આટલા દેશ, આટલા બધા યોગા તો બધાને ફાવે છે, પણ યોગ આજે બેઠા છો એ પણ એક યોગની એક પ્રક્રિયા છે. જરાય ઠંડી નથી લાગતી અને બધાને સાંભળે છે. એમના પ્રિય આદરણીય શિક્ષક કે સેવા કર્મી વ્યક્તિઓ આવ્યા, બધા જ ઊભા થઈને જે રીતે તાળી પાડતા હતા. આ એક સામૂહિક યોગ પ્રક્રિયા કહેવાય છે વિજ્ઞાનમાં. આપણી લાગણી વ્યક્ત કરવી, એને લીધે આપણા શરીરના દરેક ભાગ સુધી જે શક્તિ પહોંચે છે, બ્લડ સર્ક્યુલેશન થાય છે, એ પણ એક યોગનો જ પરિણામ છે. પ્રયોગ કરતી વ્યવસ્થા એમઈટી, ભવિષ્યની ચિંતા કરતી વ્યવસ્થા એમઈટી. અહીંના વિદ્યાર્થીઓ બહાર જઈને જે રીતે કામ કરે છે, અલગ અલગ વિવિધ વિષયો સાથે આગળ વધે છે,
MET, ત્યારે ખબર પડે કે બેને કયું આદર્શ શિક્ષિકા કહેવાય, જીને કી રાહ બતાતી હૈ. એ જ ભવિષ્યની ચિંતા કરતા આદરણીય ગુરુજનો અને એ જ વિદ્યાર્થીઓ જે આ દેશને કુછ નયા કર દિખાના હૈ એવી એક ટીમ બેઠી છે. બધાને ફરીથી આજના ગણતંત્ર દિવસ પર શુભકામનાઓ. અને આજના ગૂગલ પર એક સવારે મેસેજ પણ વાંચીને આવ્યો કે ગૂગલ એવો મહાન હોય છે એવું તમે બધા માનતા હશો. આજે જે પંચમી છે એને વસંત પંચમી કહેવામાં આવે છે. અને હું પટના જ્યાં ભણતો હતો ત્યાં એક અઠવાડિયું અમારે રજા રહેતી હતી. વસંત પંચમી એટલે એક અઠવાડિયું સેલિબ્રેશન્સ, મિલિટરી સ્કૂલની સેલિબ્રેશન્સ. નહીં ભણવાનું, ચોપડીઓ માતાજીના ચરણોમાં મૂકીને તમે કાર્યક્રમો કરો. સંક્રમણ કાળ પૂરો થયો, આપણે તો પતંગ ચગાવવાની જગ્યાએ કાપવામાં વધારે મજા લેતા હોઈએ છીએ. એવો સમાજ પણ બનતો જાય પછી જો આપણે લઈએ તો. પણ એના પછીના જે દિવસો આવે છે કે ભાઈ આપણે સરસ ઉષાકાળની મજા માણીને આપણે પછી કહીએ કે ના બધું બદલાતું જાય છે. હવે લોહડી સરસ ઉત્સવ હતો, પોંગલ સરસ ઉત્સવ હતો, એ બધું સાથે જોઈએ તો વસંત પંચમી આ બધા આપણા ઉત્સવો પણ એની સાથે જોડાયેલા છે કે આપણે સમાજ વ્યવસ્થાને આજુબાજુની પરિવેશ જે ધારણા છે આપણા મનની એ પણ બદલે અને આપણે ઉત્સવો એન્જોય કરી શકીએ. એવી મા સરસ્વતીની પૂજા કરવા માટેનો દિવસ એ વસંત પંચમીની પણ આપણે શુભકામનાઓ એકમેકને આપીએ અને ભવિષ્યની આધ્યાત્મિક શક્તિ ભેગી કરવા માટે શિક્ષણ એમાં એક મદદરૂપ થાય, એક કાર્ય થાય એવા એક યજ્ઞમાં આપણે આહુતિ આપીએ. એવા આદર્શ નાગરિક આ દેશના બનીએ. એ જ આજના ગણતંત્ર દિવસની શુભકામનાઓ. આભાર. Sir, your words have really triggered our minds in various dimensions and will surely work upon it. And a heartfelt thanks to Shah sir, because every occasion feels complete when we hear from you. Thank you, sir. Friends, it's the time to rejoice. It's the time to appreciate. It's the time to feel proud. I am a proud Indian. Are you? Yes. So, let's make this day a memorable one with a beautiful and enthusiastic dance performance by 11 CBSE girls. तिनका था हमने सवारा अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव।
really a wow performance. Let's give them a big round of applause. Now I request GSEB Principal Mrs. Toral Patel to propose a vote of thanks. Please ma'am. की शुभकामनाएं और साथ में वसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं। हम शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं और सरस्वती हमारी माता है, तो हम आज के दिन उनको नमन करते हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण में सबसे पहले मैं आज के हमारे अतिथि श्री BM रावल सर का खास करके उनका थैंक्स करना चाहती हूँ। रावल सर के एक दो चीज़ें यहाँ ज़रूर कहूँगी। एक्चुअली जब हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं तो हम उनकी ऑफिस में जाते हैं, उनको इनविटेशन लेटर देते हैं, कार्ड देते हैं, लेकिन जब हम उनको इनवाइट करने जा रहे थे उन्होंने सामने से कहा क्या मैं आ जाऊं, और उन्होंने समय दिया, उन्होंने समय पूछा कितने बजे मैं आऊं। हमें सरप्राइज़ हुआ जब हमने कहा कि सर हम 3 बजे आपसे मिलेंगे। 3 बजने में 2 मिनट बाकी थे और रावल सर कॉन्फ्रेंस रूम के दरवाजे पे खड़े थे। ऐसे रावल सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज है उसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या हम इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़े, फॉरेन की तरफ ना जाए। उनके साथ हमने जब बातें की तो हमें उन्होंने विश्वास दिलाया कि आज के बच्चे जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US की तरफ भाग रहे हैं और उनको ऐसा है कि वहाँ जाके वो अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारी एजुकेशन सिस्टम उनसे भी ज़्यादा बेटर है। बच्चों को समझना है तो मैं उनको बताऊंगा और हम रावल सर को इनवाइट करते हैं एक दिन कि हमारे बच्चों को ये समझाए कि आप जो बिना समझे किसी को देख के आगे बढ़ रहे हैं फॉरेन की तरफ, उससे ज़्यादा यहाँ भरोसा रखिए, ये मिट्टी आपको और ज़्यादा आगे बढ़ाएगी। ऐसे रावल सर उनके पास उनका समय निकाल के हमारे बीच उपस्थित हुए, हम स्पेशल उनका थैंक्स करते हैं। मैनेजिंग ट्रस्टी श्री शाह सर, रमेश मैम, संगीता मैम, हमारे सारे सेक्शन के हेड, उनका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। आज सम्मानित किए गए हमारे सारे शिक्षक और मासी और उनके फैमिली मेंबर्स जो आज खास उपस्थित हुए, उन सबको भी आभार व्यक्त करती हूँ। उपस्थित आमंत्रित पेरेंट्स और स्पेशल हमारे एक्स स्टूडेंट जो आज के दिन हमेशा स्कूल कैंपस में आते हैं, उन सब का भी आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम को सुंदर बनाने के लिए जितने भी शिक्षक और हमारे विद्यार्थी जो 11th स्टैंडर्ड साइंस में पढ़ रहे हैं फिर भी उन्होंने समय निकाल के प्रैक्टिस की और इतना सुंदर कार्यक्रम दिया, उनको भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे छात्र 9th, 10th, 11th, 12th एंड स्पेशली 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट JEE की एग्ज़ाम चल रही है, फिर भी यहाँ कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं और गणतंत्र दिवस के समारोह में उपस्थित हुए हैं। बट हमें प्राउड है कि आप ऐसे मौके पर भी स्कूल को नहीं भूलते। आपका भी थैंक्स और हमारे शिक्षक, मासी और सबको मैं आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। ये कर्म तेरे हाथ में, ये कर्म तेरा कल होगा। ये कर्म तेरे हाथ में, ये कर्म तेरा कल होगा। है कर्म में अगर सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है वो उतनी शक्ति भरता है। सोने को जितना गर्म करो वो उतना तेज निकलता है। हीरे को जितना घिसो वो उतना ही चमकता है। सूर्य सा तेज पाना है तो सूर्य सा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम भारतीय हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर एक मुश्किल का हल